Assalamualaikum. Welcome to ME Foundation School. Hope you all are fine and keep studying at home. This is your new chapter Matter and its states for class 4. Matter मतलब मादा and its states. States मतलब form. मादा और इसकी forms. Anything that has weight and takes up space is called matter. तमाम वो चीज़ें जो वज़न रखती हैं और जगह घेरती हैं उसे matter कहते हैं. Matter. There are many different kinds of thing in the world. दुनिया में बहुत सारी किस्म की चीज़ें मौजूद हैं. They are of different shapes, sizes and colors. इन तमाम चीज़ों की shapes, size और color एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. Some are hard, कुछ सख्त हैं. Some are soft, कुछ नरम हैं. Some are warm, कुछ गर्म हैं. And some are cold, और कुछ ठंडी हैं. They may be wet और dry, ये गीली भी हो सकती हैं और खुश्क भी. Rough और smooth, खुरदरी भी हो सकती हैं और चिकनी भी. All these things look and feel different from each other. ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आती हैं और मुख्तलिफ महसूस होती हैं. All things in the world have weight and takes up space. दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उन सब का कोई ना कोई वज़न है और वो जगह घेरती हैं. Anything that takes up space and has weight is called a matter. वो तमाम चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है उसे matter कहते हैं. Matter is made up of very tiny particles called atoms. Matter बहुत छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनता है. उन ज़र्रात को atoms कहते हैं. There are millions and millions of atoms in a tiny grain of sand. मिट्टी के एक छोटे से ज़र्रे में भी मिलियन से ज़्यादा एटम्स होते हैं. States of matter. Matter की forms. Matter can be found in 3 forms. Matter 3 forms में पाया जाता है और states मतलब हालतें. The state of matter depend on the arrangement of its particle. Matter की जो state है वो depend करती है उसके ज़र्रात पर. And also on the amount of space between them. और उन ज़र्रात के दरमियान जगह है उस पर depend करता है. Matter can be in solid form. Matter solid form में भी होता है. In liquid form में भी होता है. और in the form of a gas, और गैस की form में भी. A rock is solid. Rock मतलब चट्टान solid है. Water is liquid, पानी liquid है. And oxygen is a gas, और oxygen gas है. First form is solids. In a solid, the particles are close together. Solid में particles बहुत ज़्यादा करीब होते हैं. They are linked to each other and are arranged regularly. ये एक दूसरे से attach होते हैं और एक regular pattern में arrange होते हैं. Therefore, a solid has a fixed volume and a fixed shape. इसी वजह से solid का एक fixed volume होता है और उसकी एक fixed shape होती है. Liquid. Second form है liquid. In a liquid, the particles are close together. Liquid में भी particles बहुत करीब होते हैं, but they can slide over one another. लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ सकते हैं. Within a certain limit, एक हद तक. Therefore, a liquid has no fixed shape. इसीलिए liquid की कोई fixed shape नहीं है. But it does have a fixed volume. लेकिन इसका volume fix है. A liquid can flow and it takes the shape of the vessel it is poured into. Liquid को किसी भी vessel में डाला जाए तो वो उस vessel की shape को attain कर लेता है. जैसे अगर हम glass में पानी लें तो पानी glass की shape को attain कर लेता है. The surface of a liquid is always level. और जो liquid की surface होती है ऊपर की तह होती है वो हमेशा level में रहती है. Now the third form, which is gases. There are bigger spaces between the particles in a gas than between those in a liquid. Gases के जो particles हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं liquid से भी ज़्यादा दूर. They are not linked, ये आपस में जुड़े नहीं होते. And can move freely in all direction, और किसी भी direction में freely move कर सकते हैं. For this reason, a gas has no fixed shape and no fixed volume. इसी वजह से gases की कोई fixed shape और fixed volume
कंज्यूम नहीं होता। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। सब्सटेंसेस रिमेन सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर, तमाम चीज़ें अगर वो सॉलिड हैं तो सॉलिड रहेंगी, लिक्विड हैं तो लिक्विड रहेंगी और अगर गैस हैं तो गैस रहेंगी एक फिक्स टेम्परेचर पर। इफ़ दे आर हीटेड और कूल्ड, अगर आप इन्हें गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं, दे कैन चेंज फॉर्म, तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन आइस अ सॉलिड इज हीटेड, बर्फ जो कि सॉलिड है उसको गर्म किया जाए, इट चेंजेस टू वाटर अ लिक्विड, तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा जो कि लिक्विड है। व्हेन वाटर इज हीटेड, अगर पानी को गर्म करें, इट चेंजेस टू वाटर वेपर अ गैस, तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा जो गैस है। हाउ अ चेंज ऑफ स्टेट अकर, किस तरह से स्टेट को चेंज किया जाता है। हीटिंग मेक्स द पार्टिकल इन अ सब्सटेंस मूव फास्टर, गर्म करने की वजह से पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा तेज मूव करते हैं, एंड नॉक ईच अदर फर्दर अपार्ट, और एक दूसरे से टकराकर आगे चले जाते हैं। एज दे बिगिन टू मूव अराउंड फ्रीली, ताकि वो आराम से मूव कर सकें। अ चेंज ऑफ स्टेट अकर, इस तरह से स्टेट चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन अ सॉलिड सच एज आइस इज हीटेड, अगर एक सॉलिड है जो कि बर्फ है उसको गर्म किया जाए, इट्स पार्टिकल्स बिगिंस टू मूव फास्टर, तो उसके पार्टिकल्स बहुत तेज मूव करेंगे। इवेंचुअली दे मूव सो फास्ट दैट दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और एक वक्त आएगा कि वो इस कदर तेज मूव करेंगे कि वो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। एज दे बिगिन टू मूव अराउंड मोर फ्रीली, और फिर वो और ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकेंगे। द आइस मेल्ट्स, तो बर्फ़ पिघल जाएगी। इट चेंजेस टू लिक्विड वाटर, तो वो बर्फ़ लिक्विड वाटर में चेंज हो जाएगी। एंड नो लॉन्गर हैज़ अ फिक्स शेप, और फिर उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होगी। हाउ अ चेंज ऑफ स्टेट अकर, किस तरह से स्टेट चेंज होती है। हीटिंग मेक्स द पार्टिकल इन अ सब्सटेंस मूव फास्टर एंड नॉक ईच अदर फर्दर अपार्ट, गर्म करने से पार्टिकल्स बहुत तेज मूव करते हैं और एक दूसरे से टकराकर आगे बढ़ते हैं। एज दे बिगिन टू मूव अराउंड फ्रीली, और जब ये आराम से फ्रीली मूव करते हैं, अ चेंज ऑफ स्टेट अकर्स, तो उससे स्टेट चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ सॉलिड सच एज आइस इज हीटेड, मिसाल के तौर पर एक बर्फ जो कि सॉलिड है उसको गर्म किया जाए, इट्स पार्टिकल्स बिगिंस टू मूव फास्टर, तो उसके पार्टिकल्स तेज मूव करेंगे। इवेंचुअली दे मूव सो फास्ट दैट दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और इस कदर तेज मूव करेंगे कि वो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। एज दे बिगिन टू मूव अराउंड मोर फ्रीली द आइस मेल्ट्स, और फिर जब वो फ्रीली मूव करेंगे तो बर्फ पिघल जाएगी। इट चेंजेस टू लिक्विड वाटर, और फिर बर्फ लिक्विड वाटर में चेंज हो जाएगी। एंड नो लॉन्गर हैज़ अ फिक्स शेप, और फिर उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होगी। व्हेन अ लिक्विड सच एज वाटर इज हीटेड, जब हम लिक्विड जो कि वाटर है उसको गर्म करेंगे, इट्स पार्टिकल मूव फास्टर, तो उसके पार्टिकल्स बहुत तेज मूव करेंगे। सम ऑफ द पार्टिकल्स नॉक ईच अदर सो फार अपार्ट दैट दे फॉर्म बबल्स इनसाइड द लिक्विड, और जब वो तेज मूव करेंगे तो वो एक दूसरे से टकराकर बहुत दूर चले जाएंगे और फिर उस पानी में बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। दीज बबल्स राइज टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और फिर ये बबल्स लिक्विड की ऊपर वाली तह पर आ जाएंगे एंड स्केप इनटू द एयर, और हवा में उड़ जाएंगे। दे फॉर्म द गैस वाटर वेपर, और फिर ये एक गैस बना लेंगे जो है वाटर वेपर। मेल्टिंग, इफ़ यू हीट अ सॉलिड, अगर आप सॉलिड को गर्म करते हैं, द पार्टिकल्स बिगिन टू मूव फास्टर, तो पार्टिकल्स बहुत तेज मूव करेंगे। दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। दे हिट अगेंस्ट ईच अदर, ये एक दूसरे से टकराएंगे। एंड बिगिन टू मूव अपार्ट, और एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। When this happens, the solid melts into a liquid. ये जब होगा जब solid liquid में melt हो जाएगा। The temperature at which a solid changes into a liquid is called its melting point. वो temperature जब solid liquid में change हो जाएगा उसे कहते हैं melting point. Now the freezing.
When water is put in a freezer, जब पानी को हम फ्रीज़र में रखते हैं, it cools down, तो वो ठंडा हो जाता है. The particles lose energy and they slow down. तो particles अपनी एनर्जी खो देते हैं और उनकी स्पीड कम हो जाती है. दे मूव क्लोजर टू ईच अदर, जब उनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे. एंड द लिक्विड फ्रीजेस टू बिकम अ सॉलिड, और फिर लिक्विड जमकर सॉलिड बन जाएगा जो कि आइस है. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. बॉइलिंग, When water is heated, जब पानी को गर्म करेंगे, bubbles appear on its surface as it begins to boil. तो पानी की सरफेस पर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे. The temperature at which a liquid boils is called its boiling point. वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल होता है उसे कहते हैं boiling point. The boiling point of water is 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड. इवेपोरेशन, लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू द गैस वाटर वेपर. लिक्विड जो पानी है वो गैस में चेंज हो सकता है. दिस कैन हैपन इवन विदाउट बॉइलिंग. ये उबाले बगैर भी हो सकता है. इफ़ यू लीव सम वाटर इन एन अनकवर्ड पैन, अगर आप कुछ पानी लें एक खुले पैन में जिस पर ढक्कन ना हो, इट स्लोली चेंजेस इनटू वाटर वेपर, तो वो स्लाइटली और स्लोली वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा. फाइनली द पैन बिकम्स ड्राई, और फिर पैन बिल्कुल ड्राई हो जाएगा. दिस चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और इस चेंज को इवेपोरेशन कहते हैं. कंडेंसेशन, पुट सम आइस क्यूब्स इन अ ग्लास. कुछ बर्फ के क्यूब्स लें, उसे ग्लास में रखें. यू विल सी दैट ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास. तो आप देखेंगे कि ग्लास के बाहर आपको पानी के कतरे नजर आएंगे. दिस हैपन्स बिकॉज वाटर वेपर इन द एयर चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. ये इसलिए होगा क्योंकि जो वाटर वेपर होंगे वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगे, पानी के कतरों में चेंज हो जाएंगे. व्हेन इट टचेस अ कोल्ड सरफेस, जब वो एक ठंडी सरफेस को टच करेंगे. दिस चेंज ऑफ वाटर वेपर और गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इस गैस की फॉर्म को लिक्विड में चेंज करने को कहते हैं कंडेंसेशन. मिक्सचर्स, अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस. मिक्सचर में एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं. इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ये कोई खालिस चीज़ नहीं होती. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. हवा बहुत सी गैसेस का मिक्सचर है. कॉफ़ी इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर एंड कॉफ़ी बीन्स. कॉफ़ी मिक्सचर है पानी का, शुगर का और कॉफ़ी बीन्स का. आइसक्रीम इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क, शुगर एंड क्रीम. आइसक्रीम मिक्सचर है मिल्क या शुगर का और क्रीम का. अ फिजी ड्रिंक इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. फिजी ड्रिंक में जो मिक्सचर है वो है वाटर का, शुगर का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का. Coins are made up of different metals mixed together. Coins मतलब सिक्के जो बहुत से मेटल से मिलकर बनता है. Kinds of mixtures, mixtures के एग्जाम. Solution, when we make sugar and water, जब हम शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं, the mixture is clear, तो वो मिक्सचर बिल्कुल साफ होता है. We cannot see the sugar in the water, हमें पानी में शुगर नजर नहीं आती. This mixture is called a solution. इस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं. वी कैन नॉट सी द शुगर, हमें शुगर नज़र नहीं आती. बिकॉज इट हैज़ मिक्सड विद द वाटर, क्योंकि वो पानी में मिक्स हो जाती है. द शुगर हैज़ डिज़ोल्व्ड इन द वाटर, इसका मतलब ये है कि शुगर पानी में डिज़ोल्व हो गई यानी हल हो गई. इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में द शुगर इज कॉल्ड द सॉल्यूट. शुगर सॉल्यूट है एंड द वाटर इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, और पानी सॉल्वेंट है. वी से दैट शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर, हम कहते हैं कि चीनी पानी में सॉल्यूबल है यानी हल हो सकती है. सॉल्ट इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर, नमक भी पानी में हल हो सकता है.
शुगर एंड सॉल्ट आर मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। चीनी को और नमक को हम गर्म पानी में ज़्यादा हल कर सकते हैं देन इन कोल्ड वाटर, बजाय इसके कि हम उसको ठंडे पानी में हल करें। This means that more sugar or salt will dissolve in hot water than in cold water. इसका मतलब ये है कि गर्म पानी में चीनी और नमक ज़्यादा हल होगा ठंडे पानी से। Suspension. Some substances are not soluble in water. कुछ चीज़ें पानी में डिसॉल्व नहीं होती, हल नहीं होती। We say that they are insoluble. तो हम उन्हें कहते हैं कि ये इनसॉल्यूबल है। They do not dissolve in water. ये पानी में हल नहीं हुई। Sand and chalk are insoluble in water. मिट्टी और चौक पानी में insoluble है। If you add some powdered chalk to a glass of water, अगर आप एक चौक को पाउडर करें और उसे पानी के ग्लास में डालें and shake it और उस चौक को मिक्स करें, you will see white specks in the water. तो आपको एक white कलर की चिकनाहट नजर आएगी पानी में। The chalk is insoluble in water, इसलिए क्योंकि चौक पानी में डिसॉल्व नहीं हुई। It has not dissolved in the water. चौक पानी में हल नहीं हुई। We call this mixture a suspension. तो इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं सस्पेंशन, जो पानी में हल नहीं होते। Emulsion. Add some cooking oil to a glass. आप एक गिलास में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लें एंड शेक इट और उसे मिक्स करें। यू विल सी दैट द वाटर बिकम्स क्लाउडी। तो आपको ये दिखेगा कि पानी बिल्कुल क्लाउडी हो गया है, यानी बिल्कुल क्लियर नहीं है। ऑयल इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। इसका मतलब ये है कि ऑयल पानी में सॉल्यूबल नहीं है। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स प्रॉपरली। तेल और पानी आपस में प्रॉपरली मिक्स नहीं हुए। वी कॉल दिस टाइप ऑफ अ मिक्सचर एन इमल्शन। इस तरह के मिक्सचर को हम इमल्शन कहते हैं। If you leave the emulsion on a shelf for some time, अगर आप इस emulsion के solution को एक shelf पे रख दें कुछ देर के लिए, you will see that the oil comes to the top of the water. तो आपको ये नजर आएगा कि तेल पानी के ऊपर आ जाएगा। Next topic is alloy. A mixture of different metals is called an alloy. मुख्तलिफ metals के mixture को alloy कहते हैं। Coins and cooking pots are made up of alloys. सिक्के और खाने बनाने के बर्तन alloy से बनते हैं। Brass is an alloy of copper and zinc metal. ब्रास एक एलॉय है जो कॉपर और जिंक मेटल से बनता है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय। ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है ऑफ द मेटल्स कॉपर एंड टिन, और इसमें जो मेटल्स हैं वो है कॉपर और टिन। सेपरेटिंग मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को किस तरह से अलहदा करते हैं? देयर आर मैनी वेज ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1 है बाय फिल्टरिंग। फिल्टरिंग इज अ वे टू सेपरेट अ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। फिल्टरिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप सॉलिड को लिक्विड से अलहदा कर सकते हैं। सैंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर पेपर। पानी में से हम मिट्टी को इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं कि हम एक फ़िल्टर पेपर लगा दें। द वाटर विल पास थ्रू। तो जो पानी होगा वो उस फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, बट द सैंड विल बी लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। और जो सैंड होगी यानी रेत होगा वो उस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। By evaporating, salt can be separated from water by heating the solution. Salt को पानी से हीट करके भी अलहदा किया जा सकता है। The water will evaporate from the solution. पानी evaporate हो जाएगा solution में से and the salt will be left behind. और पीछे आपके पास सिर्फ salt बच जाएगा। By stirring with the magnet, a mixture of sand and iron filling can be separated by stirring the mixture with the magnet. Sand और iron fillings मतलब लोहे के टुकड़ों को आपस में अलहदा कर दिया। अब उसको अलग करने के लिए हम मैग्नेट यूज करेंगे। The iron filling will stick to the magnet. तो जो लोहे के टुकड़े होंगे वो उस मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएंगे and the sand will be left behind. और पीछे सिर्फ सैंड बच जाएगी। By adding water, a mixture of colored substances in black ink can be separated by adding water to it.
कलर्ड सब्सटेंसेस का मिक्सचर जो है ब्लैक इंक में, उसको अलहदा किया जा सकता है कि उसमें हम और पानी ऐड कर दें. बाय डिकेंटेशन एन इनसॉल्युबल सॉलिड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड बाय pouring ऑफ द क्लियर लिक्विड फ्रॉम द टॉप ऑफ द मिक्सचर. By decantation, an insoluble solid can be separated from a liquid. Insoluble solid को हम liquid से अलहदा कर सकते हैं by pouring of the clear liquid, कि हम clear liquid को गिरा देंगे from the top of the mixture, mixture के ऊपर से. This process is called decantation. इस process को कहते हैं decantation. The insoluble substance will remain at the bottom of the vessel. और जो insoluble substances होंगे यानी जो पानी में हल नहीं हुए होंगे वो वेसल के नीचे बच जाएंगे. यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया. इसके बाद चैप्टर की कुछ एक्टिविटीज हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. गिवन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. नंबर 2, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड, अ लिक्विड, अ गैस. तीनों की आपने 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है. फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट्स. फिल करनी है ब्लैंक्स को. राइट एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स. फॉलोइंग मिक्सचर्स आपको दिए हुए हैं, इनकी आपने एग्जाम्पल लिखनी है. नेम द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग द पार्ट ऑफ अ मिक्सचर. इन के मेथड्स के आपने नेम लिखने हैं. नंबर 6, नेम द प्रोसेसेस ABCD. चारों में कौन सा प्रोसेस हो रहा है वो नाम लिखना है आपने. यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया. नाउ विल डिस्कस वीकली होमवर्क असाइनमेंट 11. इस असाइनमेंट को 6 टास्क में डिवाइड किया गया है. टास्क से मुराद डेली बेसिस का काम. टास्क 1 है तो डे 1 का काम है. टास्क 2 है तो डे 2 का काम है और फिर इसी तरह. टास्क 1 में आपने रीडिंग करनी है मैटर एंड इट्स स्टेट्स की, पेज नंबर 42 to 48, और मेक अ टाइटल पेज बनाना है. टास्क नंबर 2, फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स के मीनिंग नोट करने हैं. टास्क नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. टास्क नंबर 4, चूज द करेक्ट आंसर. टास्क नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. टास्क नंबर 6 इज योर एक्टिविटी. Let's start task number 1. Read unit number 5 matter and its state, page number 42 to 48. अभी मैंने आपको रीडिंग कराई है, आपने दोबारा मेरे साथ रीडिंग करनी है और फिर टाइटल पेज बनाना है. Now students open your copy and make a title page. Unit number 5 matter and its state, date नोट करनी है. Now the task number 2, find the meanings of the given words. गिवन वर्ड्स के मीनिंग नोट करेंगे कॉपी में. कॉलम बनाएंगे वर्ड्स मीनिंग का. मैटर मादा, पार्टिकल जर्रा, स्टेट्स हालतें, मेल्टिंग पिघलना, फ्रीज जमना, सॉल्यूशन महलूल, मिक्सचर मुरक्कब या आमेजिश, कॉइन सिक्का, मेटल धात, सेपरेट अलग. टास्क नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. डन इन बुक में ही करनी है. पेज नंबर 49. ओपन योर बुक, पेज नंबर 49. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डैश गैसेस. फिजी ड्रिंक्स कंटेन शुगर, फ्लेवरिंग, वाटर एंड डैश गैस, कार्बन डाइऑक्साइड. When sugar dash in water, we cannot see it. Mix. The sugar in a solution is called the dash, solute. Water is a dash for sugar and salt, solvent. Sand does not dash in water, dissolve. Chalk is dash in water, insoluble. Coins are made of dash of metals, alloys. Now the task number 4, which is choose the correct answer. हेडिंग आएगी चूज द करेक्ट आंसर. नंबर 1, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस इज डैश डिग्री सेंटीग्रेड. ऑप्शन 0, 100. करेक्ट ऑप्शन इज 0. नंबर 2, सम सब्सटेंसेस आर नॉट डैश इन वाटर. ऑप्शन soluble, insoluble. करेक्ट ऑप्शन इज soluble. नंबर 3, चेंज ऑफ वाटर वेपर और गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डैश. ऑप्शंस कंडेंसेशन, evaporation. करेक्ट ऑप्शन इज कंडेंसेशन. नंबर 4, salt can be separated from dash by heating the solution. Options water, cola.
Correct option is water. Number 5. Matter is made up of very tiny particles called dash. Correct option is atoms. Now the task number 5, answer the following questions. 7 questions given है जिनके आंसर नोट करने हैं. Question number 1, what is matter? Answer, anything that takes up space and has weight is called matter. Question number 2, what is an atom? Answer, matter is made up of very tiny particles called atoms. Question number 3, write 2 properties of solid. Answer, number 1, solid has a fixed volume and shape. Number 2, in a solid the particles are close together. Question number 3, what is melting point? Answer, the temperature at which a solid changes into a liquid is called its melting point. Question number 4, what is evaporation? Answer, the change from a liquid to a gas is called evaporation. Question number 5, what is an alloy? Answer, the mixture of different metals is called an alloy. Question number 6, explain the process of decantation. Answer, an insoluble solid can be separated from a liquid by pouring off the clear liquid from the top of the mixture. This process is called decantation. Now the last task, which is your activity. Open your book. Write 3 properties of a solid, a liquid, a gas. सॉलिड की 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है, लिक्विड की 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है और गैस की 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है. सेकेंड एक्टिविटी, राइट एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स. मिक्सचर्स आपको दिए हुए हैं, इनकी एग्जाम्पल आपने लिखनी है. एंड नंबर 3, नेम द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द पार्ट्स ऑफ अ मिक्सचर. दोनों मेथड्स के नेम लिखने हैं. नंबर 6, नेम द प्रोसेसेस. इन चारों के आपने प्रोसेस लिखने हैं. नंबर 6, नेम द प्रोसेसेस ABCD. इन चारों में जो प्रोसेस हो रहा है वो लिखना है आपने. यहाँ पर आपका कॉपी वर्क ख़त्म हो गया. आई होप आपको चैप्टर और काम समझ आ गया होगा. बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करना है जैसे स्कूल में करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.